نہیں کہا میں نے, لنک نہیں میں تو میرا خیال ہے کہ وعلیکم نہ جانا السلام. زیادہ بہتر ہے. ابن عطا بھائی آپ اسٹیج پر آئے نا, ایسے بھائی تمام لوگ بڑی بڑی ہستی ہیں بھائی موجود ہیں اس وقت, تو اسٹریم کھینچنی چاہیے اور آگے کو. اب اسٹریم ختم نہیں ہو رہی, اب آپ کبھی بھی آ سکتے ہو آسک یور کویشچن کے لیے. ایک منٹ, آ چکے ہیں اسٹیج پر اسم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت رمضان مبارک ساروں کو. آپ کو بھی مبارک, آپ کو بھی بہت بہت مبارک. اور بہت کیسا گزرا آپ کا ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا جب آیا تھا تو میں اپنی ذرا پڑھائی میں تھا, تو جب میں پڑھائی ختم کی میں سمجھ گیا تھا جی, میں سمجھ گیا تھا اس ٹائم. وہ میرا تھوڑا سا میرا جز رہتا تھا تھوڑا سا, تو ٹھیک ٹھیک ٹھیک. میں پھر جب اپنی ریڈنگ ختم کی تو کیسے ہیں سارے, خیریت سے ہیں, خیر و عافیت سے ہیں, کیسا الحمدللہ. الحمدللہ, اللہ پاک کا احسان شکر. آپ بتائیں کب آ رہا ہے ہمارا پارٹ 2؟ بےتابی سے انتظار ہے اس کا. پارٹ 2 میں کچھ چیزوں میں ذرا پھنس گیا تھوڑی دیر. وہ میری ریسرچ ساری ہوئی ہے اس کے اوپر, بٹ آبویسلی وہ اس ریسرچ کو ایک فارم کے اندر ڈالنا, اس کی ایک کوہیرنٹ ریپرزنٹیشن کرنا, کہ انفارمیشن تو سارے ہی لے سکتے ہیں, بٹ اس کو ڈلیور کرنا ایک اور جس کو کہتے ہیں فن ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر میں جتنی ایفرٹ میں سے ہوتی ہے, پتہ نہیں لوگ کوئی اس سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو میں بات سمجھانا چاہوں میں کسی ایک اچھے طریقے میں, اچھے انداز میں انفارمیشن اگلے کو دوں تاکہ اس کو بات سمجھ آئے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. اب whether we achieve that objective or not, اللہ عالم. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا تو یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ہماری سوچ امہ کی بینیفٹ کے لیے ہو جائے. آمین آمین. آپ کے میرے خیال آپ کے 2 روزے ہو گئے ہوں گے. نہیں 2 کیسے؟ اچھا ایک ہی ہو. جی ہمارا بھی پہلا ہی ہوا. اچھا ٹھیک. لوگ سمجھتے ہیں, لوگوں کو ایک مجھے پڑ جاتا ہے کہ بھائی ایس ایم کے بھائی جو ہے نا یہ کہاں ہیں. آج کل کچھ بھائیوں نے مجھے ایک تو اور مجھے ایک میسج آیا ہوا تھا, کچھ بھائیوں نے مجھے ایک تو اور جگہ ذرا انگیج کیا ہوا تھا, تو ادھر بھی کیا کہتے ہیں کچھ باتیں چل رہی تھیں. اور خیر ذہن کبھی کبھار نا کوئی 10 مختلف چیز ڈائریکشنز میں بھاگنا شروع ہو جاتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. میرے لیے سب سے جو مشکل ہوتا ہے نا, خاص طور پہ جب میں اپنی رمضان کا میں دورہ کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختي آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. وہ دماغ جو ہے وہ میرے لیے سب سے مشکل میری ریڈنگ قرآن کی ہوتی ہے رمضان کی, کیونکہ میں کیسا بندہ ہوں, رمضان سے علاوہ جو ہے نا میں اپنی ریڈنگ کمپلیشن کی طرف نہیں لے کے جاتا ہوں. وہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ, فنڈامنٹل پرنسپلز, اس کے اندر پھر ریفرنسز نکال کے ریفرنسز کو اسٹڈی کراس ریفرنس کرنا, اس طرح کی میری ریڈنگ ہوتی ہے. وہ جو کمپلیشنسٹ ریڈنگ ہوتی ہے نا شروع سے لے کے اینڈ تک جو رمضان کی ہوتی ہے, وہ میری بہت مشکل ہوتی ہے, کیونکہ میرا دماغ ایسے ایسے ٹاپکس لے جا کے آج جیسا فار ایگزامپل جب میں اپنا جوز کمپلیٹ کرنا چاہ رہا تھا, کچھ آیت ایسی تھیں کہ میں بس پھنس گیا ہوں کے اوپر, اس کی سوچ پہ پرنسپلز پہ کنیکشنز. وہ ایسا پتا چلا کہ میں پڑھنے بیٹھا ہوں 1.5 گھنٹے سے میں 2 آیتوں پہ کے اوپر سوچ رہا ہوں. میں کہا سبحان اللہ, اس طرح تو پھر میرا ہو گیا قرآن ختم. وہ پھر مجھے اپنے اوپر بہت زیادہ ڈسپلن ڈالنا پڑتا ہے. اور ساتھ میرا کوشش ہوتی ہے, میری ٹریڈیشن یہ ہے کہ میری جو رمضان کا جو نوٹ ٹیکنگ ہوتا ہے نا, وہ ایک رمضان ایڈیشن نوٹس کا ایک میرا فرق ہوتا ہے میرے ملک سے. تو ایک پچھلے سال کا ایڈیشن تھا, ایک اس سال کا ایڈیشن کے لیے میں نے سوچا کہ میں ہینڈ رائٹ کروں. تو اگر کسی نے میری ہینڈ رائٹنگ دیکھنی ہے وہ بھی میں دکھا سکتا ہوں. اگر بری مجھ سے بری نہیں ہوگی, اب وہ میں لوگوں کے اچھی رہے گی چھوڑ دیتا ہوں, بری ہے یا اچھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسے قریب کیجیے گا. There are things falling out of my notebook. بہت پرانی نوٹ بک ہے. This background is not going to pick it up. Yeah, exactly. Let me see if I can change the green screen. Exactly. What happens if I do it like this? There. Now you should be able to see everything. Yeah. زبردست ماشاء اللہ. نہیں بہت بہت خوبصورت ہے. مجھے رائٹنگ کی عادت ہی نہیں رہی. میں نے کہا کہ یار اتنی مشکل, اس لیے میں نے خاص طور پہ میں نے یہ والی جو پینسل ہے نا, یہ میں نے پینسل ہی اسی نیت سے منگوائی تھی کہ جو رمضان آ رہا ہے اس کے اندر میں اسپیشل پینسل منگواؤں گا جس کی میں نوٹ ٹیکنگ پینسل سے کروں گا استعمال. ماشاء اللہ. سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے. ابھی آپ جو بات کر رہے تھے نا اس کی کہ بعض دفعہ پڑھتے ہوئے کچھ
بندہ ایک جگہ پہ رک جاتا ہے اور اس کو غور و فکر کرنی پڑتی ہے. مجھے یاد ہے پچھلے سال کی بات ہے کہ میں ایک جگہ تفسیر کا لیکچر ریکارڈ کر رہا تھا اور وہ طلبا تھے. جیسے کہ بھائی ہم لوگ جب وہ باقاعدہ اس کی گرامیٹکلی سمجھا رہے ہوتے ہیں, میں سمجھاتا تھا, تو پھر رات میں جب تراویح پڑھاتے تھے تو اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ جو مضاف الیہ اور اس قسم کی عبارات جو کہ جن کو ہم کہتے ہیں چھپی ہوئی عبارات, وہ عبارات جب ہم نکالتے تھے ترکیب کے دوران تو وہی عبارات پھر تراویح کے دوران بھی نکل جاتی تھی بعض دفعہ منہ سے. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی تھی ہماری. جب پیچھے کھڑا سامنے پیچھے جو کھڑا سننے والا ہوتا تھا وہ باقاعدہ وہ تو حیران رہے گا کہ یہ تو قرآن میں ہم نے کہیں سنا نہیں, تو نہ کبھی پڑھا. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. جیسے آپ کے اوپر یہ والا آتا ہے, ہمارے اوپر وہ والا وہ مولانا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے عادت ہوتی ہے نا, تو وہ جیسے لقمہ دے گا نا کسی کو کہے گا یہ نہیں ہے. تو آپ کس کی تفسیر یوز کرتے ہیں؟ میں نہیں, یہ عفان صاحب انہوں نے میں تفسیر. جی جی میں بیان القرآن میں سے. اوکے اوکے. بیان القرآن کا. اچھا, میرا ٹریڈیشنلی جو طریقہ رہا ہے نا, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تفسیر کو ایز لٹل ایز پاسبل کنسلٹ کروں جنرل ریڈنگ کے اندر. اس کی ایک وجوہات ہے. اگر میں ایک اسپیسیفک ٹاپک کو لے کے چل رہا ہوں تو پھر آئی آلویز کنسلٹ تفسیر. بٹ اگر ایک جنرل ریڈنگ ہے نا, میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریڈنگ میں کروں وداؤٹ تفسیر انٹل اینڈ انلیس میں کوئی ایسے پوائنٹ پہ نہ پھنس جاؤں. بکاز ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ تفسیر کو لے کے چلیں گے نا, وہ اٹس پاسبل کہ آپ کسی اور کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر لاک ان ہو جائیں. اور ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی صرف ایک بندے کی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے کریکٹ. ایسا ہی ہے. اور جہاں تک میری وہ ہے, میں جو بیان کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ میری اپنی رائے ہے, وہ کافی ساری تفاسیر کو ملا کر پھر اس کے بعد ایک اپنا پوائنٹ رکھنا. ایک تو یہ ہے, یا پھر اگر کسی خاص آیت کی اگر تفسیر ہو رہی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے, اور وہ بھی وہ والی انڈرسٹینڈنگ جو کہ اسلاف سے اور صحابہ سے تابعین سے اور مفسرین سے ثابت ہے, وہ والی انڈرسٹینڈنگ سے چلتی ہے. جی مثلا ابن داؤد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. جی ابن داؤد بھائی, شاید چل رہی ہے شاید. یہ ایک ہم سلسلہ لے کر مولانا نے, یہ مولانا کا ہی مشورہ تھا اور یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے مولانا کے حکم سے, بس یہ چل رہا ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. یار کوئی اوکے. ایک بروزر جو ہے نا, ایک ویب سائٹ, وہ کچھ میرے لیپ ٹاپ میں پرابلم کر رہی ہے. کچھ کافی پہلے کھل کے کام کر رہا تھا میں بند کر کے گیا, اوپن کیا, کوئی نہ کوئی پرابلم ہو گیا. چلیں اس کو بند کیا. اور خیریت تو سب الحمدللہ. آپ بتائیں, رمضان مبارک آپ کو. آپ کو مبارک ہوں. آپ ہم سے پیچھے ہو رمضان کے معاملے میں. ویسے ہم نے اصل میں 30 پورے کیے نا, ہم نے 30 دن پورے کیے, تو ہم عید شاید ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کریں. نہیں, وہ یہاں بھی 2 چل رہے ہیں نا. ہمارے ترکوں والا سسٹم تو لگے نا, ترکوں نے پہلے سے جناب جو کیلنڈر رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ ایک زبان والے بات ہے, لکھ دیا آپ نے ہماری ایک زبان میں. ہاں, یو ایس وغیرہ میں بھی, یو کے وغیرہ میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ دو طرح سے چل رہا ہوتا ہے. اور ایس ایم کے بھائی بہت دنوں بعد نظر آئے ہو. یہ ایس ایم بصارت عالم دونوں آج کل جو ہے نا وہ چھٹیوں پہ گئے ہیں. یہ گلا میرا بھی ان سے ہے. نہیں اپنے داؤد بھائی, بس کچھ چیزیں چل رہی تھیں انشاءاللہ, اور بس ان چیزوں کو سمیٹتے پھر رمضان بھی آ گیا الحمدللہ. تو بس انشاءاللہ. بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ کنسیڈر کر رہا تھا, کیونکہ میری رمضان کی ریڈنگ تو ڈیڈیکیٹڈلی, وہ تو آگے پیچھے کی بھی ریڈنگ ہوتی ہے میری, مطلب چند گھنٹوں کی دن کی, بٹ رمضان کی تو اسپیسیفکلی پھر ڈیڈیکیٹڈ ٹو قرآن. بٹ سوچ رہا ہوں میں کہ میدان کافی خالی ہوگا, کچھ نہ کچھ اسٹریمز کر لینی چاہیے رمضان میں. یا پلیز, نہیں ضروری ہے اسلام بھائی, ورنہ ایسے میں کہ بھائی آپ اگر میدان خالی چھوڑیں گے نا تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مولوی بھی نہیں ہے اور درس قرآن لے کر بیٹھ چکے ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں آپ نے اشارہ کر دیا عرفان بھائی, بٹ مولوی تو خیر ہم بھی نہیں ہیں. نہیں ایسے میں کہ بھائی ہوتا پتہ کیا ہے, ایک بندے کا کہ جس کا میں کیا نام ہے, پہلے اپنے بندے کو اپنے آپ کو تو سدھارنا چاہیے نا, اپنے آپ کو تو ایک کیٹیگری میں لانا چاہیے. آپ کے بیسک ہی ٹھیک نہ ہو اور آپ لے کے بیٹھ جائیں درس قرآن کرنے کے لیے, تو فائدہ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں اس میں ایک اہم نقطہ بیان کرنا چاہوں گا. ایسے کے بھائی جیسا آپ نے بات کی نا, دیکھیں ایسے کے بھائی جو دایان ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ کوئی ایسی بات بیان نہیں کرتے کہ جب تک وہ اس بات کی تصدیق علماء سے نہ کر لیں. بے شک. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے, کوئی نقطہ آ رہا ہے, کوئی ایسی چیز آ رہی ہے, اگر آپ اس کی تصدیق اپنے اساتذہ سے علماء سے کر لیتے ہیں یا علماء کی کتب میں اس کو پاتے ہیں, پھر اس کو بیان کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اپنی محض اپنی اٹکل کی بنیاد پر نئی جدید اختراعیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے لانا, یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. تو اگر کوئی شخص عالم نہیں ہے, جب میں بھی میرے پاس ایک سند موجود ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں اپنا درس نظامی کا فارغ عالم نہیں. بے شک, بے شک. نہیں, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, اہم پوائنٹ ہے.
कोई भी मैं बात ऐसी बात होती ना, कोई पढ़ी हो, जब तक मैंने उसे अपने मुस्तनद उलमा से ना सुना हो या उनकी कुतुब में ना पढ़ा हो या मुस्तनद जो फुक़हा उलमा गुजरे उनकी कुतुब में उस बात को ना पाया हो, मैं उसको जुबान पे लेके नहीं आता जब तक मेरे ज़हन में जो बात आई उसकी तस्दीक कहीं और से ना हो जाए, उलमा से ना हो जाए। तो ये चीज़ है, इसको इख्तियार करना चाहिए जो आलिम ना हो। लेकिन बात असल में ये है कि वो जिसको ना उसूल पता, ना कुछ पता, ना उलमा का मौका पता, वो आके तुरम खान समझता है। और बहुत से ऐसे में यार मैं खामोश हूं, ये प्राइवेट मैं जो बचने वाला ये बेग से कहूंगा। हाँ इसी तरह सही कह रहे हैं आप, इस बात में तो मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। और अल्लाह माफ करे, कुछ दाई हैं इब्न दाऊद भाई, वेस्ट के कुछ दाई हैं, वो भी इस बात पे उतर चुके हैं। मैं एक स्ट्रीम देख रहा था दूसरे दिन, एक बड़ा पॉपुलर आजकल का वेस्टर्न दाई है, तो एक अर्ली क्रिश्चियनिटी का फिगर है जिसको कहते हैं जेम्स, शायद आपने नाम सुना हो। इसको कहते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट का भाई था जेम्स, तो उसने जेम्स का नाम लिया, कहता है जेम्स अस-सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु। मैं कहा ओ भाई, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और उस वक्त स्ट्रीम को 1000+ बंदा देख रहा था अल्लाह, और उस 1000+ बंदे ने आंख भी नहीं झपकी। उन्होंने कहा वाह वाह वाह। तो बात ये है कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत, अल्लाह माफी करे, अपनी अंडरस्टैंडिंग तभी आप अंडरस्टैंडिंग। जी जी, वो मैंने एक शेर आपके लिए उस दिन अर्ज किया था, तमाम लोग जितने भी पैनलिस्ट में हमारे मौजूद हैं, कि बस यही वक्त है, सच मुंह से निकल जाने दो, लोग उतर आए हैं जालिम की तरफदारी पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके साथ मैं डायरेक्टली जो आखिरी जुज की आयत है ना, मैं वो कनेक्ट करूंगा इस बात के साथ। पहली जुज की आखिरी आयत जी, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें। नहीं आप स्टार्ट करें। नहीं, मैं आपका तलफ़ुज़ में से बेहतर है, आप पढ़ें तो बेहतर होगा। मैं अपने तलफ़ुज़ के बारे में बहुत सेल्फ कॉन्शियस हूँ। सूरह फातिहा की जो आखिरी आयत है उसकी बात करें। जुज़ पहली जुज़ की आखिरी आयत 141, पहले जुज़ की आखिरी आयत। एक मिनट, इसमें अभी बात हुई है और वो मैं शेयर कर देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। आप शेयर कर दें, ऐसे ठीक रहेगा, आप शेयर कर दें। बिल्कुल, एक मिनट, स्टेज पर ही आते हैं। अच्छा, मैं समझ गया था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि कुछ गलत कोट ना हो जाए। तिलका उम्मतुन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। जी, बहुत जबरदस्त। जी असम भाई, कि जो गुजर गए वो तो गुजर गए, उनकी क्या फिक्र कर रहे हो, जो है उसके ऊपर फिक्र करो आप। ये किस लड़ाई में पड़ गए हो कि उन्होंने क्या माना, वो कौन थे, वो जब कुरान ने आपको बता दिया कि क्या है और कुरान है आपके पास, इसके ऊपर गौर फिक्र करो। किस कहानी में पड़ गए हो। अस्तगफिरुल्लाह। इवन एहसन के भाई, ये आयत सिर्फ ये यहाँ एक जगह नहीं है, इसके अलावा भी एक और जगह भी यही आयत एज इट इज मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह 2 जगह ये आयत नकल हुई। अच्छा, इजाजत हो तो मैं इस आयत पे एक बात रखना चाहूंगा। जरूर। जी जरूर। वो ये कि इस आयत से भी बात जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल ये करते हैं कि जनाब वो जो उम्मत थी, हमारे उलमा फुक़हा जितने गुजर गए वो तो गुजर गए, वो जाने, उनका काम जाने। हमारे सामने जनाब मौजूद है, ये इबारत नस मौजूद है, हम तो इसको करेंगे। हालांकि इस आयत का मकसद ये नहीं है। इस आयत का मकसद ये है कि उनके ऊपर हुक्म आप नहीं लगाओगे। आप उनके लिए, ये सवाल किया गया था मूसा अलैहि सलाम से अब उनके आबा व अजदाद के मुतालिक, तो उनके मुतालिक आप हुक्म नहीं लगाओगे कि वो जन्नती हैं, दोज़खी हैं। हम कहेंगे उनके लिए खैर की दुआ करेंगे, हुक्म नहीं लगाएंगे। यानी कि एक उनकी, हाँ, उनसे इस्तेफादा हम हासिल करेंगे। ये कहकर जान खुदा जी हासिल करना चाहते हैं बाज़ लोग कि जनाब वो थे, चले गए, वो जाने, उन्होंने जो कहा वो जाने, हम जाने, अल्लाह जाने, हम तो जनाब अपना इस्तेमाल खुद करेंगे। नहीं, यहाँ ये मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है कि उनका और अल्लाह का मामला अल्लाह जाने। वो जो खिदमत करके गए हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर हम उससे इस्तेफादा हासिल करेंगे, जिस पर हमसे पहले गुजरे उम्मत और अइम्मा मुज्तहिदीन इजमा कर चुके हैं। वो इजमा हमारे लिए हुज्जत है, जो वो इस्तिदलाल कर चुके हैं। आज जो पुराने मसाइल हैं नवाजिल में से नहीं है, तो जो उन्होंने इज्तिहाद किया है, उन्होंने जो फतावे इख्तियार किए हैं, उन्होंने जो कौल इख्तियार किए हैं, उन्हीं में से कोई एक मुसीब होगा। अगर जमा नहीं हो सकते, यानी कि एक मुसीब और खता का मसला है कि 2 कौल जमा नहीं हो सकते या 2 से ज्यादा कौल जमा नहीं हो सकते, तो उन मुख्तलिफ अक़वाल में से जो हमसे पहले गुजरे हुए के मौजूद हैं, उन्हीं में से कोई मुसीब होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1400 साल तक हक जो है वो मफकूद हो गया था, दुनिया में नहीं रहा था, और आज 1500 साल बाद, 1400 साल बाद एक नया कौल आएगा और वो हक होगा। तो जो मसाइल पहले से मौजूद हैं, जिनके मुताबिक उलमा के अक़वाल फतवा मौजूद हैं, ये कद खलत उम्मती के अंदर, उन्हीं के अंदर मुसीब होगा। आज कोई नया मुसीब नहीं आएगा। तो इसीलिए फिक़ह एक कायदा है कि जो मसाइल पहले से हैं
ठीक है, नवाजिल तो अलग है, नवाजिल के नया इत्तेहाद होगा क्योंकि वो मसाइल जदीद मसाइल हैं, लेकिन जो मसाइल हैं उनमें कोई कॉलेज जदीद इख्तियार नहीं किया जाएगा, कोई कॉलेज जदीद ईजाद नहीं किया जाएगा। यहाँ से जो ना बाद लोग इस शुबे में मुब्तला हो जाते हैं कि पिछले उलमा ने फुकाहा ने जो कहा है उनको छोड़ दो। जी मैंने अच्छा नहीं बिल्कुल। और इधर जो दूसरा इसका दूसरा रुख है आयत का, जो कि हम एम्प्लीफाई करें, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, इसमें जो दूसरा रुख है ना कि जो लोग ऐसे उमूर सर अंजाम दे रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे उम्मत को लड़वाने वाले काम कर रहे हैं, कि मैं नाम नहीं लेता ऐसे अशखास का, बहुत सारे हैं, तो वो ऐसे काम करते हैं कि जिससे उम्मत में तफर्रक़ पैदा हो, और ऐसी अब्हास ऐसी बहसें छेड़ते हैं उम्मत में कि उम्मत सोच में पड़ जाती है कि ये क्या है, क्या चल रहा है हमारे इस्लाम में, हमारे इस्लाम में आज तक क्या चला आ रहा है। तो ये उनके लिए आयत है कि तिलका उम्मत उनका खरत, आपसे पहले वो उम्मतें थी गुजर चुकी, उनके अमाल का, उनकी कसब का उनसे हिसाब लिया जाएगा, और आपसे सवाल नहीं होना उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। ये उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ जो कि दुश्मनाने सहाबा, जिनको हम रवाफिज कहते हैं, वो लोग बरमला सहाबा के खिलाफ ज़बान दराजियाँ करते हैं, अंबिया के खिलाफ ज़बान दराजियाँ करते हैं। बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं रवाफिज में से नहीं और दिगर हैं कि वो उन्होंने अंबिया तक को नहीं छोड़ा, मलाइका तक को नहीं छोड़ा, फरिश्तों की मासूमियत पे उन्होंने सवाल उठाया, अंबिया की मासूमियत पर उन्होंने सवाल उठाया, हत्ता कि यहाँ तक कह दिया अल्लाह कि नबी को भी बाज़ दफ़ा शक हो सकता है माज़ल्लाह। इतना बड़ा जुमला। जी बिल्कुल, कादियानी दीन में से एक है इब्राहिम भाई। तो प्लेनेट अर्थ वाले साहब इनमें से एक हैं, वो भी यही काम करते हैं कि सहाबा के आपस के जो इख्तिलाफात थे, जो जंगें थी, जमल सफीन नहरवान, जो भी जंगें थी आपस के इख्तिलाफात वाली, अब उनको आज उम्मत के सामने, जो कि आज से 1100 साल 1200 साल 1300 साल पहले ही उम्मत ने दफन करके छोड़ दी और उन पर कलाम करना भी गवारा नहीं किया, तो आज आप लाकर किसी के सामने रख दें और आप सहाबा के दरमियान, जो मैंने तकाबुल वाली बहस में आगे तिलका रसूल फद्दलनाबाद मनाबाद के ज़िमन में मैंने ये बात रखी कि तकाबुल बैन अल-अंबिया या तकाबुल बैन सहाबा हराम नाजायज़ है, वो यही काम करते हैं, दिन रात उनका यही वतीरा है, ख्वाह वो रवाफिज़ हों, ख्वाह वो प्लेनेट अर्थ वाले हों, या कोई भी इनसे मानूस कोई और हो, इनके फॉलोअर्स, तो यही काम करते हैं, तकाबुल करते हैं सहाबा में जो कि हराम है, तकाबुल करते हैं अंबिया में हराम है। हमसे पूछताछ नहीं होनी उनके बारे में, उन्होंने जो कर लिया वो कर दिया, उनसे उनके फेल का हिसाब अल्लाह ताला ने लेना है, ना कि हमने लेना है। और इनके बारे में ये ज़बान दराज़ी कर रहे हैं, सवाल ये है जिनके बारे में कुरान खुद कह रहा है कि उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा, कि ये वो जमात है जो कि बिल्कुल पक्की ठक्की मोमिन है। मोमिन कुरान, अल्लाह ताला कुरान में खुद उनके बारे में मोमिन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, ठीक। दूसरी जगह अल्लाह ताला इनको मयार ईमान ठहरा रहा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ये जो एसएम के भाई ने आयत रखी तिलका उम्मतुन क़द ख़लत, मतलब पहले जो उसकी आखिरी आयत, इससे कुछ आयत पहले ही ये आयत आती है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर ईमान लाना है तो ऐसा ईमान लाना है जैसा कि ये लोग लाए। कौन लोग? सहाबा जैसा ईमान लाए हैं, यही ईमान लाएंगे तो काबिल कबूल होगा, फ़क़द इह्तदौ, तभी हिदायत मिलेगी। वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, अगर इसके अगेंस्ट कोई काम करोगे तो फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, फिर वो किसी दर्जे में नहीं आएगा, फिर वो काबिल कबूल नहीं है। मयार ईमान ठहराया गया सहाबा को, और आज उन्हीं सहाबा पे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह लातान किया जाता है। तो सोचने वाली बात है, फिक्र करने वाली बात है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अगर हिदायत इनके मुक़द्दर में है, अगर नहीं है तो अल्लाह ताला इनको इबरत का निशान बनाए। जी इब्न दाऊद भाई, मौलाना कौन सा? नहीं, इब्न दाऊद भाई मौजूद हैं तो फिर हमने तो काफ़ी बात कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि इन बातों पर देखिए मौलाना, कल से जब से मैंने कुछ लोगों को देखा है ना कि वो भी दरस कुरान लेकर बैठ चुके हैं, वो भी रमज़ान मुबारक के नाम पर एक अपनी वो लेकर बैठ चुके हैं कि नहीं हम तो हेल्प करेंगे, और हम तो पता नहीं क्या-क्या, अल्लाह रहम करे यार, थोड़ा बहुत तो खुदा का खौफ अपने दिल के अंदर बिठा कर रखो। वही जो मौलाना नियाज़ गुम्मन साहब दाबरकतुहुल आलिया, मौलाना नियाज़ गुम्मन मुतकल्लिम इस्लाम, वो ये कहते हैं कि अगर बंदा कुछ भी नहीं कर सकता तो नक़ल करनी चाहिए उसको, क्योंकि हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है कि हम उन उलमा की तरह इज्तिहाद कर सकें, जैसे वो कुरान और सुन्नत से हर चीज़ को अख़ज़ करते थे, वो हमारे अंदर सलाहियतें मौजूद नहीं है, वो अक़ल हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमें उन उलमा के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी नक़ल करनी है। अब तुम नक़ल से ही भाग जाओ, पहले ही तुम नक़ल नहीं कर पा रहे और अपनी अक़ल के घोड़े दौड़ाने लग जाओ, तो फिर तो ये सही नहीं है। और किस नाम पर? कि यार हम इस्लाम की दावत दे रहे हैं, हम इस्लाम का ढोंग रचा के उस पे लग जाइए। फिर फ़ायदा क्या है जब आपको यही वो नहीं है कि हुज़ूर की शान में कोई गुस्ताखी करके जा रहा है, आपको कोई शर्म नहीं है, आप ये कह रहे हो कि नहीं हम तो उन्हें हिदायत पर लाना चाह रहे हैं। भाई जो हुज़ूर की शान में गुस्ताखी कर रहा हो, आप उसे टोक नहीं रहे, तो आप कैसे उसको क्या नाम है, समझा कर अल्लाह ताला से दुआ करके उसको हिदायत पर ला सकते हैं? बात यहीं से शुरू हुई थी, जो बात जो निकली कि भाई ये लोग जो उतर आए हैं ना जालिम की तरफदारी पर, जो बात बता रहा है ना कि अर्ज़ नहीं होता, वो प्लैनेट होता है, वो कहीं और होता है, याजुज माजुज एक अलग थे, वो ये वो था और ये वो था। एक्चुअली देख लीजिए वो मुफ्ती साहब वाली, कि एक्चुअली जिसने बोलना चालू कर दिया ना, बस उसे पता नहीं लोग क्या समझते हैं।
नहीं, एक्चुअली देखिए अर्ज वो होता है, एक्चुअली देखिए प्लम्बरी नहीं होती, वो फिल्मबरी होती है। एक्चुअली देखिए वो आयरन ड्रॉम भी हफिजुल्लाह बन जाता है। एक्चुअली देखिए कि हम भी तौसे कुरान करने लग जाएंगे, तो यार खुदा का खौफ करना चाहिए। और वो लोग कि जो इन लोगों को सुनते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत अल्लाह ताला अकल दे, अक्ल सलीम अता फरमाए उनको, अल्लाह माफ करे। पता नहीं अच्छा, क्या क्या इसमें मैं चाहूंगा कि यहाँ पे उस चीज़ की कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजाहत आ जानी चाहिए। एसएम के भाई मौजूद हैं। एसएम के भाई, एक होता है तौहीद। हमारे यहाँ जो बुनियादी चीज़ है इस्लाम में तौहीद है। और अरबी में एक कायदा है कि हर चीज़ की जो गरज मालूम हो जाती है वो उसकी ज़िद से, उसकी जो अजदाद है, ज़िद जिसको हम कहते हैं, उससे मालूम होती है। तो तौहीद की ज़िद क्या आती है? शिर्क। ऐसे ही एसएम के भाई ना। बिल्कुल। तो अब शिर्क की काफ़ी सारी अक़साम है ना, तो उसमें मोटी मोटी अक़साम जो मुफस्सिरीन नकल करते हैं, शिर्क तस्मिया, यानी कि नाम रखने में शिर्क कर देना। जैसे कि ऐसा नाम रखा जा सकता है अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, अब्दुल जब्बार, अब्दुल सबूर। तब अल्लाह ताला की सिफाती नाम जैसे या ज़ाती नाम के साथ अब का लफ्ज़ मुज़ाफ लगा देना, ये नाम तो रखा जा सकता है। लेकिन इसी तरह क्या ये नाम रखना जायज़ है अब्दुल रसूल या अब्दुल नबी? क्या ये जायज़ है? 100% नाजायज़, हराम है। ठीक इसी तरह फिर शिर्क में एक किस्म आती है शिर्क फिर तसर्रुफ की, शिर्क फिर इबादत की, शिर्क फिर दुआ की। अब शिर्क फिर दुआ क्या है? किसी ऐसे से दुआ मांगना और उस पर यकीन करना कि ये बंदा मेरी दुआ को कबूल कर सकता है, तो ये शिर्क में आ जाता है। शिर्क फिर तसर्रुफ भी इसी में आ जाता है कि किसी को ऐसा मलका हासिल हो, यानी किसी को ऐसी अथॉरिटी पावर हासिल हो कि वो तसर्रुफ कर सके, कि वो हर चीज़ पर कादिर हो, और वो ऐसी शख्सियत हो अल्लाह ताला के अलावा कोई ऐसी शख्सियत जो हर चीज़ पर कादिर हो और हर चीज़ पर कादिर होने के साथ साथ अपना तसर्रुफ भी कर सके, हर मामले में अपना तसर्रुफ भी कर सके। तो इसको भी शिर्क ही डिफाइन करता है, शिर्क ही कहते हैं। अब तसर्रुफ माफ़ौक़ल आदत ही होता है। अगर किसी को पुकारा जाए कि हमारे यहाँ बर सग़ीर में तो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि लोग हज़ारों पर जाकर मन्नतें मांगते हैं कि या पीर, फलाने पीर, कि मुझे बेटा दे दे, बेटी दे दे, या मेरा बेड़ा पार हो जाए, या मेरी बिगड़ी बन जाए। इस तरह के जो अफ़ाल हैं, तो क्या ये शिर्क के तसर्रुफ में आते हैं या नहीं आते? तो इस पर अगर कुछ कलाम हो। जी समझो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार मैं पहले जनाब माफ़ी चाहूँगा एसएम के भाई से। एसएम के भाई को नुक्ता रखना चाह रहे थे और मैं जनाब जो है वो उस बात को मैंने उस आयत के ऊपर अपनी एक नुक्ता रख दिया। वो एसएम के भाई क्या बात कह रहे थे तो वो जिक्र ही नहीं हुई। तो एसएम के भाई आप इस आयत पे क्या बयान करना चाह रहे थे, फिर तो वो बयान कीजिए। हाँ भाई, इसी तरह होता है माशाल्लाह, बातों से बातें निकलती हैं। लेकिन ये जो मौजू जो है डॉक्टर साहब रख रहे हैं, उससे पहले मैं ज़रा एक मुख्तलिफ, एक थोड़ा सा हट के नुक्ता रखना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो तो। जी जी ज़रूर। आज जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो एक बात ज़रा फंस गई मेरे ज़हन के अंदर। जब कुरान लफ्ज़ इस्तेमाल करता है बयीना का, बयीना क्या होती है? कोई जवाब बयन देना? क्या है ना, बयन बय्यन या बयना? बयीना या बयीन, बय्यिना, बय्यिना। रूट तो सेम है ना? नहीं, रूट तो सेम है। बय्यिना का बय्यिना माना जैसे पहले जुज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को बयीना दी। या क्या मतलब हुआ इसका? बय्यिना से मुराद वहाँ पर निशानी, मौजिज़ा, मौज़ात। आई डोंट थिंक सो एक्चुअली। असल आयत मोहम्मद अली भाई, असल बयन का मतलब है किसी चीज को वाज़ेह, मुबय्यन, रोशन, जाहिर करना होता है। और मौजज़ा जो है वो उसी को करता है। तो बयन करना, ये जो मौजज़ा होता है वो भी किसी चीज को, यानी कि अल्लाह की वादानियत को, कुदरत को बयन करता है। तो ये उस सवाल से मेरा बेशक। अब ये मैं किस बात से कनेक्ट कर रहा हूँ? मैं इस बात से कनेक्ट कर रहा हूँ जो अफान भाई कह रहे थे कि भाई लोग बैठ जाते हैं, प्लैनेट अर्थ वाले भी बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अर्थ का मतलब ये नहीं है, मैं तुम्हें अर्थ का मतलब बताऊंगा। और फिर कुछ लोग पोर्टल्स खोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं, देखो इधर जो है ना, इधर पोर्टल का जिक्र हो रहा है। हत्ता कि हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इस वक्त दुनिया पे अगर कोई बयीना मौजूद है तो वो कुरान से बढ़ के है कोई? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या कहा जाएगा उस इंसान का जो बयीना को लेके कहेगा कि नहीं, मैं फिर बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, और क्या कहते हैं जिल क्या है और बरूज क्या है। तो इसको अब मैं वापस कनेक्ट करूंगा जो लास्ट वाली 141 वाली आयत है, ठीक है, कि जिनको आपको भूलने का कहा जा रहा है उनको आप भूल नहीं रहे हैं और उन्हीं की आप हरकतें कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मैं बार-बार क्या कह रहे हैं कि मैंने दी बयीना और कुरान है बयीना, और आप कह रहे हैं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन वो जो जिनको हमें कहा गया ना, जिनको भूल जाओ,
हम उन्हीं की हरकतें हम कुरान के ऊपर डालेंगे। लाहौल वाला होता है। एक क्लियर चीज को लेके अपनी सर्विसिंग, अपने प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लोगों को गुमराह कर देना, एक क्लियर एविडेंट एब्सोल्युटली क्लियर बयान बेईमान को लेके आप अपनी इंटरप्रिटेशन थोप दो अंदर, और आपके सुनने वाले बोले वाह 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 वाह, क्या बात है जी, हमें भी प्लम्बरी का सर्टिफिकेट दे दें। मतलब क्या ही कहा जाए फिर। तो मैं सिर्फ ये एक छोटी सी बात, क्योंकि वो नुक्ता एक चल रहा था, उसके अंदर मैं एक थोड़ी सी चीज ऐड करना चाह रहा बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा मौलाना, इसमें एक बात और निकल आती है अगर आपकी इजाजत हो तो। जी। ये जो एसएम के भाई ने जो अभी बात जो रखी ना कि गुमराही की तरफ लेकर जाना, लोगों को गुमराह करना, एसएम के भाई वो जो हदीस है ना, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, तो इसमें कहा गया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। उसकी वजह ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हो गए, और आखिरी नबी के बाद में अब इसकी उम्मत की जो रहनुमाई जो करेंगे वो करेंगे उलमा, बेशक, क्योंकि वो वारिस हैं, विरासत में उनको मिला है इल्म। अब बात ये है कि असल हदफ जो आज जो है वो यही है कि जो उलमा हैं, जो सालिहीन लोग हैं, जो हक के दाई हैं, जो हक को वाज़ेह करने वाले हैं, जो वजा अल हक वज़ह अल बातिल का फ़र्क बताने वाले हैं, इन लोगों का काम यही है कि उन लोगों से इन तमाम लोगों को काट दिया जाए, बदगुमानियाँ पैदा कर दी जाएँ उलमा के बारे में, और उलमा के बारे में कह दिया जाए कि इन्होंने तो आज तक आपको कुछ दिया ही नहीं है। तो ये इतना बड़ा हदफ है, और ये हदफ बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, और ये हदफ पे काम हो रहा है, और इतनी तेज़ी के साथ काम हो रहा है कि लोग ये कह रहे हैं मेरा प्लेटफॉर्म खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे मैं गलत, मेरा अक़ीदा सही नहीं हो, चाहे मैं गलत बयान ही कर रहा हूँ, मैं भी दर्स कुरान करूँगा, चाहे मुझसे आता नहीं हो, मैं भी लेकर बैठूंगा सीरत बताने के लिए, चाहे मुझे सीरत का एक लफ्ज़ नहीं आता हो। तो उन लोगों के बारे में ये है कि वो उलमा से काट लें। अफान भाई, इसके अंदर एक और बात, अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा है कि इस्लाम को प्रिजर्व महफूज करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने ऊपर ये बात ली है ना कि मैं ही इस्लाम को महफूज रखूंगा, करेक्ट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे महफूज रखा जाएगा? लॉजिकली अगर देखा जाए, एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू महफूज रखा जाएगा ना जी। और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जब तक नहीं बनेगा तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी ना, करेक्ट? बिल्कुल। और प्रॉपर फ्रेमवर्क कैसे बनता है? वो बनता ही स्कॉलरशिप के थ्रू है। अगर आपके स्कॉलर्स नहीं होंगे, आपका फ्रेमवर्क नहीं बनेगा, और आपका इस्लाम कभी भी महफूज नहीं हो सकता। तो इसी लॉजिक के तहत जो बंदा बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, ये सारी स्कॉलरशिप गलत है, मैं बताऊंगा क्या सही है, तो लॉजिकली तो फिर यही बंदा होगा जो चाहता है कि इस्लाम महफूज ना रहे। अच्छा, इफ आई से टुडे, अगर मैं आज कहता हूँ कि आज तक 1400 साल में उलमा ने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो इस पर नहीं अलाइज बिला, अगर मैं ये बात करता हूँ तो इस पर आप क्या राय देंगे, क्या कहेंगे? मैं कहूंगा तो आप एक किस्म का इस्लाम का इनकार कर रहे हैं। अगर उलमा ने नहीं किया सही तो इस्लाम आप तक महफूज पहुंचा कैसे फिर? हाउ? अच्छा मौलाना, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लें कि उलमा में सहाबे किराम भी शामिल हैं। हाँ, इनफैक्ट जिन मौसूफ का ये जुमला है, वो जुमला कुछ यूं है कि 1400 साल में मुसलमानों ने कोई खैर का काम नहीं किया। ये जुमला है एज इट इज, 1400 साल में मुसलमानों ने कोई खैर का काम नहीं किया। यहाँ मैं एक नुक्ता रखना चाहूंगा, इंशाल्लाह आप भी इसमें ऐड कीजिएगा। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इल्म यानी दीन इस्लाम का इल्म उठाया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो किताबें फट जाएंगी, ये किताबें गर्क हो जाएंगी, ये किताबें आसमान को चल जाएंगी, बल्कि उलमा वफात पा जाएंगे, उलमा की अमवात होगी, उलमा दुनिया में नहीं रहेंगे। तो इल्म का वजूद, इस्लाम का वजूद, इस्लाम किससे कायम है? उलमा से कायम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि जो विरासत है नबूवत के इल्म की विरासत, इस वही की विरासत, दीन इस्लाम की विरासत, ये जो इल्म है ये कौन है? इसके वारिस उलमा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहतन उलमा के वजूद को इस्लाम करार दे रहे हैं, इल्म के वजूद उलमा से अपना साथ मुंसलिक उसके साथ मुल्क कर रहे हैं। और इल्म का उठाया जाना उलमा के उठाए जाने से मुल्क है। इसके बावजूद भी कोई लोग जो है अपनी अटकल पच्चू से जो बकवासियात करें, तो हम क्या कह सकते हैं? लोगों को भी कुछ इतनी अकल तो होनी चाहिए कि इन बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी को तो कम से कम समझो। क्या हमारे जो लोग हैं, आम आवाम है, वो इतना भी नहीं समझती? तो भाई आप भी अपने जज्बात को जरा पीछे डालो और थोड़ा सा कम से कम अपनी जो कम से कम इंसान की जो अकल होती है कि जिसकी बुनियाद पर वो आकिल में शुमार होता है इंसान। वो तो कहते हैं ना, एक शेर है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी कोई वैसा नहीं इंसान होना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आदमी इसलिए होते हैं कि आदमी के बच्चे हैं, वरना आदमी वाले काम उनके नजर नहीं आते। तो भाई आवाम को भी सोचना चाहिए कि किन बेवकूफों की, क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि इतने बड़े बलंडर मारने वाले, इतने बड़े बेवकूफ की बातों पर तुम एतबार करते हो? मुझे तो शिकवा आवाम से भी है, उससे थोड़ी है। सिर्फ उसको जो सर पे उठा के नाचने वाले हैं वो भी इतने मासूम थोड़ी है, फिर कसूरवार वो भी है। जी, वो हदीस जो आपने कोट करी थी वो सामने आ गई जी। ये इब्राहिम भाई बड़ा माशाल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर इब्राहिम भाई को। मैं आपको कह रहा हूँ इब्राहिम भाई जो है ना वो रोबोट है एक्चुअली में। आप नहीं बिल्कुल मुझे पता है।
मैंने इनका ऑयल चेंज किया हुआ है, मुझे पता है इनका। और हम तो रोजाना ही कर रहे हैं। जी जी जी। इब्न दाऊद भाई ने जो बात रखी ना, इसके अंदर मैं एक और बात रखना चाहूंगा। इस बात का इशारा हमें कुरान भी देता है। जब कुरान कहता है कि तुम क्या नफ्स परस्त बन जाओगे, तो ये नफ्स परस्ती नहीं है कि नहीं मुझे इस्लाम की ये बात पसंद नहीं आई, तो इस बात को ना मैं ऐसे चेंज करके पेश कर दूंगा कि देखो नहीं, देखो जो ये करते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं ना, वो असल में उनको नहीं पता, मुझे पता है। मैं बताऊंगा 1400 साल में जो उलमा गुजरे हैं, जिन्होंने डायरेक्ट सीना बसीना अंडरस्टैंडिंग हासिल की, वो सारे गलत थे। और जो मैं आया हूं अब एक तोहफा प्लेनेट अर्थ के ऊपर, मैं बताऊंगा करेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है। भाई क्या ये नफ्स परस्ती नहीं है तो क्या है? कोई मुझे जरा बता दे। एसएम के भाई, इसके ऊपर मैं बार बार एक पॉइंट रखता हूँ, और ये उससे मेरा सवाल है कि जो ये पता है, एक बंदा एसएम के भाई ये कह रहा है कि जो ईसाइयों की, आप ईसाइयत को तो बड़ा आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा है, कि बुक ऑफ रेवोल्यूशन जो है उसके अंदर, मैं अगर सही नाम ले रहा हूँ, वो ये कह रहा है उसके अंदर कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मुझे ऐसा लगता है, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपनी तरफ से, अल्लाह ताला माफ फरमाए ऐसी बातें ना निकले, वो कह रहा है कि उसके अंदर कुछ बातें मुझे ऐसा लगता है कि वो सही हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लगती है मुझे, कि वो सही अहादीस लगती है मुझे नबी की। आप जरा मतलब तसव्वुर कीजिए ये। और देखें, मैं आपको अगर एक बात बताऊं, आप शायद शॉक हो जाएंगे इस बात से। अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे वेस्ट के दाई हैं जो कहते हैं कि मैथ्यू मार्क लूक और जॉन हमारी किताब है। फिर उन्होंने ये बयान लाइव स्ट्रीम पे दिया हुआ है, क्रिश्चियन के साथ डिबेट करते हुए कि ये तुम्हारी किताबें नहीं है, ये हमारी किताबें, क्योंकि इनके अंदर तौहीद है। अच्छा, अगर मैं बात को जी मौलाना, तो आजकल बहुत ही अल्लाह माफ करे वो किसी और ही डगर पे चल पड़े। एसएम का भाई वजह पता क्या है? अगर ये समझ लीजिए, मैं या कोई भी अगर ये कह रहा है कि 1450 साल से जो इस्लाम हमें पेश किया जा रहा था, जो उलमा हमारे पास पहुंचा रहे थे इस्लाम, वो आपको वो गलत पहुंचा रहे थे। एक तो बंदा होता है वो कहता है कि कुछ उलमा ऐसे हैं कि जिन्होंने इस तरह की ब्लंडर मार दी, लेकिन वो मुतलक बयान करता है कि तमाम के तमाम उलमा ऐसे हैं। मैं कहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं जाकर वो कुफ्र के दर्जे तक पहुंच चुका है, और मैं उसे इस तरह कुफ्र के दर्जे तक लेकर जाता हूँ इस बात को, कि आप जब ये कहते हो ना कि उलमा ने कुछ नहीं दिया, तो आप इनकार कर रहे हो इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया का, कि जो सही हदीस है। और जब आप इस हदीस का इनकार कर रहे हो, तो फिर सहाबा भी इसके अंदर दाखिल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सहाबा को सिखाया गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो सहाबा को इल्म दिया, वो गलत दिया। जबकि कुरान करीम के अंदर इरशाद है कि इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि ये जो नबी जो भी कुछ कहते हैं वो वही होती है, अपनी तरफ से कुछ बात नहीं करते हैं। तो फिर ये उस चीज की, उस आयत का इनकार हुआ। और वो आयत किसने नाजिल की? वो कलाम किसका? वो कलाम अल्लाह रब, वो कलाम लेकर कौन आया? वो लेकर आया जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो इसका मतलब पता चला कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहीं ना कहीं चूक हुई। अब जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से चूक हुई, तो ऊपर जाइए कि लोहे महफूज में महफूज है, फिर उनसे चूक हुई, फिर कलम से चूक हुई, और जब कलम से चूक हो गई तो कलम को पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। तो 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहकर मैं बात कर रहा हूँ कि फिर अल्लाह तबारक व तआला से नाउज़ु बिल्लाह चूक होगी, फिर इसका मतलब कोई ना कोई अल्लाह ताला दूसरा मौजूद है। बिल्कुल, इस पे ब्रेक नहीं लग सकती। आप कहाँ ब्रेक आपने लगानी का? पहला प्रेमिस तो आपने ये सेट कर दिया ना कि आप कहते हैं कि 1400 साल में उम्मत ने कोई अच्छा काम नहीं किया। वो 1400 साल में सहाबा भी गुजरे, ताबीन, तबा ताबीन, इमाम मुजतहिदीन, जितने भी सो ऑन चले, ठीक, तो वो भी 1400 साल में गुजरे हैं। तो जब सहाबा ने ही सही काम नहीं किया बकौल आपके, तो फिर ऊपर आप जाते जाएंगे, सहाबा ने इल्म हासिल किया नबी से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज्जत है, तो फिर आप स्टॉप कहाँ करेंगे इस चीज़ को? कहाँ जाके पॉज करेंगे? कोई लिमिट है आपके पास? नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी एक और प्लेटफॉर्म से कुरान से गुफ्तगू हो रही थी। मैं कहा तुम हदीस का इनकार करते हो? हाँ, 200 साल बाद लिखी गई थी, वही जो उनका स्क्रिप्ट होता है। मैं कहा ठीक हो गया। मैं कहा तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि ये जो कुरान तुम्हारे पास पहुंचा, ये कुरान तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? अब ये कुरानिस्ट जो है ना, ये कुरानिस्ट कादियानी क्रिश्चियन, इनको कोई एलर्जी है, कोई इनको ना डिजीज है कि ये मुंह से सीधी बात नहीं निकाल सकते। सबसे पहले उसने कहा नहीं, अब कुरान क्या है? कुरान तो एक तिलावत है, कुरान ये है, कुरान वो है। मैं कब मैं खुलो जा। मैं कहा जो मुसहफ तुम्हारे पास है, वो मुसहफ तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? कहता है नहीं, मेरे ऊपर वही उतरती है। मैं कहा वाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं कहा तुम्हारे ऊपर वही उतरती है? मैं कहा कौन सी जुबान में तुम्हारे ऊपर वही उतरती है? कहता है बंगाली में। मैं इमेजिन करें हदीस के इनकार करने के लिए और कुरान को प्रिजर्व करने के लिए कहता है कि मेरे ऊपर डायरेक्ट वही उतरती है, वो भी बंगाली में उतरती है। मैं कहा अल्लाह लानत है तेरी शक्ल में। अस्तगफिरुल्लाह, ये इनका स्टैंडर्ड है। अब देखें, कोई बड़ी बात है ना, देखें मैं एक लिंक डाल रहा हूँ साइड चैट में। दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं रैंडमली एक यूट्यूब मैंने रिफ्रेश किया, तो एक स्ट्रीम आ गई किसी क्रिश्चियन की, और वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर उसने सवाल पूछा हुआ कि व्हाई आरंट यू क्रिश्चियन? मैं कहा वेरी नाइस। मैं कहा देखिए इधर क्या गुफ्तगू चल रही है। मैंने क्लिक किया,
تو اس نے کہا کہ جی پہلی بات جو میں نے سنی اس کی اسٹریم پہ جب میں نے کلک کیا کہتے ہیں او گاڈ لاجک از مائی شیخ. بہت بڑھیا, ویری گڈ, گاڈ لاجک از مائی شیخ. اس کے بعد ایک بندہ آ گیا اس کے پینل کے اوپر جو کہتا ہے کہ یار دیکھو جو تم کہہ رہے ہو یہ ٹرینٹی اینڈ جیسس از گاڈ کر رہے ہو, یہ تو کہیں ہے ہی نہیں بائبل میں. اور پھر اس گفتگو میں بڑے غور سے وہ گفتگو سنتا اینڈ پہ آ کے جب یہ بندہ لاجواب ہو گیا نا, اس نے بدتمیزی کر لی دوسرے کرسچن کے ساتھ جو کہہ رہا تھا کہ بھائی کرائسٹ از ناٹ گاڈ, کرائسٹ از جسٹ سن آف گاڈ. میں کہا اچھا, اب مجھے میری ہاتھوں میں ہو گئی کچھ نہیں شروع, میں سے رہا نہیں گیا, میں نے لنک پہ کلک کر دیا, میں کیسے تمہیں ذرا جا کے نا خبر اسٹارٹ کروں. تو یہ وہ لنک ہے. میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک نے کہا جیسس از ناٹ گاڈ, جیسس از گاڈ ناٹ دا سن آف گاڈ, اب یہ دونوں میں بحث چل رہی تھی. ایک نے کہا جیسس از ناٹ گاڈ جسٹ دا سن آف گاڈ, اوکے, اور دوسرا جس کا پینل ہے وہ ٹرینیٹیرین ہے, وہ کہہ رہے ہیں جیسس از گاڈ. اوکے اوکے اوکے, ان کے درمیان میں بحث شروع ہو رہی ہے اور دونوں بحث کر رہے ہیں بائبل کے اوپر. ان لوگوں کا بس چلے, یہ اسلام کو بنا دیں جو کرسچینٹی بنا ہوا ہے, ان لوگوں کا اگر بس چلے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی پہلے گفتگو کر رہے تھے, پلانٹ ارتھ والے. اور جیسے آپ نے شروع میں یہ تینوں کو جوڑا نا, قادیانیت کو, قرآنسٹ کو, کرسچینٹی کو آپ نے ایک طرح سے جوڑا. اب آپ نے اس کی تو مثال دی قرآنسٹ کی کہ اس کو وحی آ رہی ہے بنگالی زبان میں, تو ملعون مرزے کو بھی وحی پہلی آئی انگریزی زبان میں, جو سب کو پتا ہے کیا ہے, آئی لو یو. سیریسلی کتابوں میں موجود ہے, I swear to God کہ یہ کتابوں میں اس کی موجود ہے کہ اس کو پہلی وحی آئی من جانب اللہ علیہ باللہ ثم معاذ اللہ, کہ اس کو پہلی وحی آئی ہے آئی لو یو. اندازہ لگا, انگریزی میں اس کو وحی آ رہی ہے, یہاں قرآنسٹ کو وحی آ رہی ہے بنگالی میں, اور مرزا کو جو ملعون دجال ہے اس کو وحی آ رہی ہے انگریزی میں. وہ ابن داد میں موجود ہے. ابن داد بھائی کو معلوم ہے کہ ایک آیا تھا قرآن سے, اس نے کیا نام ہے, کیا کتا بھی حلال کر دیا تھا قرآن کے ذریعے, کہا کہ ہاں کتا بھی حلال ہے. ہاں ان کے یہاں کوئی پیمانہ نہیں ہے, وہ بسارت بھائی کے چینل پہ ہوا تھا. تو ان کے بارے میں بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے, ان فی الماء و استن فی السماء, کہ بھائی بس تم یہ کر لو تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت دماغ گھٹنوں سے اوپر کو آ جائے. ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے, میں بات ہو رہی ہے سادات, میں زیادہ لمبی بات کرنا نہیں چاہتا, ورنہ جو ہے نا بہت ساری باتیں کھل جائیں گی ادھر. ہاں بس پھر پتہ چلے گا کہ سحری کا ٹائم جو ہے نا بس 1 منٹ رہ گیا, فٹافٹ سحری کر لو. فٹافٹ سحری کر لو. ہاں, تو وہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا نا اسی کے حساب سے کہ جھوٹ جو ہوتا ہے نا, جھوٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں بات کیسے کروں تاکہ وہ بات پھیلے نہ, تو وہ مجھے تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے اس بات شروع ہوگی تو پھیلے گی تو صحیح. ہاں ٹھیک ہو گیا, میں شروع کر دیں. نہیں ایسے نہیں, بات نکلے گی تو بہت دور سلک جائے گی. جی بالکل. میرا خیال ہے جانے دیں, جتنا دور تک جاتی ہے اچھی بات ہے, جائیں, اگر ہدایت نصیب میں ہوگی تو انشاءاللہ ملے گی. کیونکہ آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا کہ میرا ون آف مائی فیوریٹ ٹاپکس کیا ہے. آئی ونڈر کہ کوئی میرا خیال ہے اے پرائم بھائی تو گیس کر لیں گے, میرا ون آف مائی فیوریٹ ٹاپکس کرسچینٹی ہے, جہاں تک مجھے معلوم ہے. کرسچینٹی سے بھی فیوریٹ ہے ایک میرا, پھر مجھے معلوم نہیں. ابراہیم بھائی کے اوپر ڈیپینڈ. اے پرائم بھائی تو 100% ان کو پتا ہے اس بات کا جواب. ویری کلوز, یس, نالج اور ماشاءاللہ. Epistemology is one of my favorite topics. ہاں دیکھا, لکھنے میں تھوڑی دیر لگ رہی تھی, کوئی نہیں, بات ایک ہی ہوگی. جی. اب اگر آپ کیونکہ میں آج جو ریڈنگ کر رہا تھا اور جو پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ میں کچھ چند آیتوں کو لے کے نا جو ہے نا میں بیٹھ گیا ان کی غور و فکر میں, اور میں انشاءاللہ میں نے ایک نوٹ بنایا ہوا کہ میں اس کیا نام ہے رمضان کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر اسٹریم کروں گا ایک, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس نے مجھے ہلا دیا تھا. میں بلکہ ایسے کیوں نہ کریں گے, میں آیت اسکرین کی بلا دوں, اگر گل لمبی ہونی ہے تو پھر چنگی طرح لمبی کریے نا. ایک سیکنڈ میں اپنے نوٹس میں ذرا چیک اوکے. اب یہ بالکل البقرہ کی شروع والی آیتوں کی بات بیان ہوتی ہے.
ٹھیک ہو گیا. اب یہ اتنی ڈیپ بات ہے کہ یہ میں صرف اس کا ایک ایسپیکٹ لگانا چاہتا ہوں. زبردست. ٹھیک ہے, یہ ذرا پڑھیے گا جس نے بھی پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا کہ ان کے دلوں میں یکذبون, مرض ہے. یکذبون کہ انہوں نے جھٹلایا, بما كانوا یکذبون, جھوٹ بولا. یا جھوٹ بول. جھوٹ بولا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جھوٹ بولنا, جھوٹا ہونا وہ مرض ہوئی نا. ہاں مرض ایکچوئل اگر صرف اس آیت کو دیکھیں تو پھر مرض صرف یہاں پہ جھوٹ بولنا یا مرض, اس مرض کا ایک بہت اہم سمٹم جو ہوگا وہ ہوگا جھوٹ بولنا یا جھوٹا ہونا, رائٹ؟ یا بیوٹیفل. اور وہ کس بات کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے؟ obviously کانٹیکٹ سے اگر دیکھیں تو وہ نفاق کی بحث چل رہی ہے, منافقت کی. تو منافقت میں یہی ہے کہ جھوٹ کس بارے میں, اپنے عقیدے کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے. ظاہراً کچھ اور تھے اور باطناً کچھ اور تھے. ہمارا ایک سیکنڈ, ہاں بالکل. بٹ اس کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں. ہاں دیکھا ایگزیکٹلی اے پرائم بھائی, میں نے آیت بیان کی, انہوں نے وہی کنیکشن انہوں نے بنا کے وہ خود بیٹھے ہوئے. یار میں نیچے چلا جاتا ہوں, اے پرائم اوپر آ جائے یار. ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ اسٹیج پر آئیے, لیکن ابراہیم بھائی تو ہم نے کہا آپ کی ضرورت ہے. بات یہی ہوگی نا کہ جھوٹ آپ کس کے بول رہے ہیں؟ آپ کے علم کے اوپر. آپ اس علم کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں, اور اس کا کانٹیکسٹ آپ کو پیچھے مل جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بالکل پہلے والی آیت میں کیا کہتے ہیں؟ They think to deceive Allah and those who believe, but they deceive not themselves and perceive it not. سبحان اللہ. کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم سمجھ رہے ہو جھوٹ بول کے تم اگلے کو بے وقوف بنا دو گے. اب اگلا اگر بیٹھا ہوا ہے قرآن کے ساتھ, وہ کہے گا کہ یار یہ تو مجھے بے وقوف بنا رہے ہو کیا؟ نہیں. اور اسی چیز جو میں نے پہلے کنیکٹ کر رہا تھا آیت 141 کے ساتھ, بات وہی ہوگی کہ یہ والے لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے تھے, جن کے بارے میں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھول جاؤ ان لوگوں کو, نیا زمانہ آ گیا, قرآن ہے تمہارے پاس. یہ وہی والی حرکتیں کرنا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, اور ان لوگوں جیسی حرکتیں وہ ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. استغفر اللہ. تو کیا ہی کہا جائے. مولانا میں پوچھ رہا ہوں, آپ کی طرف کوئی ماڈریٹر نہیں ہے؟ نہیں اس وقت کوئی بھی. چلیں انہیں بنا دیتے ہیں, ایک منٹ رکے. نہیں وہ کر دیا میں نے, وہ ہو گیا, ٹھیک ہے. نہیں ہم ابراہیم بھائی کو بنا دیتے نا تو کیا ہو گیا. نہیں آ گئے مہتاب بھائی آ گئے. مہتاب بھائی سو گئے تھے بیچارے, شہری کا وقت ہو گیا. شہری کا وقت ہو گیا ہے, جاگو. ذرا مولانا والے چینل پہ نظر رکھتے تھوڑی سی. جی ایسے کہ بھائی جاری رکھیں. میں کنیکشن یہی بنا رہا تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کے جھوٹوں کی وجہ سے ہی یہ ہو جائیں گے سمن بکمن عمی. کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ ایک ایسا چیز ہے. جھوٹ بھی آپ کس بات پہ بول رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کے اوپر, ان کی وحی کے اوپر آپ جھوٹ بول رہے ہو. تو اب ان میں اور ان میں ہے کوئی فرق؟ امداد بھائی اگر آپ نے میوٹ کیا, آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں میں بات کر رہا ہوں, بات مکمل کیجیے پہلے اپنی. میں تو اسی نقطے کے اوپر بات مکمل کر رہا تھا کہ بھائی ان میں اور ان میں کیا رہ گیا فرق؟ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو آج کے دور کے جو آپ کے سامنے کچھ لوگ رکھے گئے ان میں, اور جو قرآن بیان کر رہا ہے, جو آیت آپ نے رکھی, ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے سمجھے بھائی, بہت عرصے. ایگزیکٹلی دیٹ. اور بات یہی ہے نا کہ آپ جب 1400 سال اسلام کا جھٹلاؤ گے تو سب سے بڑے جھوٹے تو آپ ہوئے نا خود. سب سے بڑا جھوٹا تو وہی ہوگا نا جو یہ جھٹلانے والا ہوگا. استغفر اللہ, کیا ہی کہا جائے ان لوگوں کے بارے میں. دیکھیں ایسن کے بھائی, یہ جو آپ نے آیت میں رکھی نا, اس کے اوپر ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے ایسا میں کہ انسان جو ہے اپنی نفس پرستی, اپنی انا, اپنی ناک اونچی کرنے کے چکر کے اندر جو ہے نا, وہ اس کے دل کے اندر ایسی بات آتی ہے کہ وہ جھوٹ بول جاتا ہے. کبھی ایسی دیکھیں دنیاوی امور کے اندر, دنیاوی معاملات کے اندر اگر انسان نے کیا یہ بھی جرم ہے, یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے, لیکن اس کی نوعیت, اس کا درجہ ایک الگ ہے. جیسے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا یہ دوسروں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے. جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. بے شک
तो इसी तरह अगर कोई शख्स दुनिया की यानी कि खातिर, किसी अपने फायदे की खातिर, किसी नफे की खातिर, किसी नाजायज काम की खातिर, उसके अपनी ख्वाहिशात दुनियावी, उसके मामले के अंदर अगर कोई झूठ बोल रहा है तो ये भी इंतहाई कभी फेल। लेकिन दीन के मामले के अंदर जो बंदा अपनी नाक ऊंची रखने के लिए, क्योंकि उसने वो शायद हो सकता है वो कहना नहीं चाहता, वो गलती से कह दिया, लेकिन अपनी नाक ऊंची करने के लिए वो जनाब उस पर डट जाता है, फिर वो हजार तावीलें पेश करता है, फिर वो हजार तरीके से अपनाता है कि अपनी बात को जनाब जो है वो बदल कर उसको माजरत ना करने पड़े। ऐसा आपने देखा हो। तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। अब इन्होंने इन्होंने क्या कहते हैं, अपने आप को मनवाने के लिए वो कुछ ऐसी बातें की हैं। अब 1000 बार उनको समझाते हैं, वो कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलते हैं। और मसला दुनिया के चक्कर नहीं है, मसला ये मसला दीन का है। तो मैं एक बात मैं कहा करता हूँ अक्सर, मेरा जुमला ये मेरे मकूलों में से एक है कि इंसान अपने आप को धोखा दे सकता है, पूरी जहां को धोखा दे सकता है, वो अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। जब इंसान दीन के मामले में झूठ बोलता है, वो अपनी चाहे क्या कहते अना के अंदर कहे, झेप पिटाने के लिए कहे, किसी भी तरह से कहे, तो उसके दिल के अंदर एक मर्ज आ जाता है, वो दिल की बीमारी होती है। और फिर ये बीमारी बढ़ती है, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है ना, अल्लाह ने जो फरमाया है कि फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। तो जब फिर ये होता है कि इंसान जो है जब इसमें पड़ जाता है ना इस चक्कर के अंदर, ये एक इंसान के एक ऐसी बात करके फिर झूठ उधर झूठ करते हैं, वो दिल का मर्द बढ़ते चले जाता है और फिर उसको खबर भी नहीं होती कि ईमान किस रास्ते से चले गया और दिल में सिर्फ निफाक रह गया। बात हक की ही नहीं हुई ना, फिर हक तो गया, फिर हक को तो उसने कोई स्टैंडिंग ही नहीं दी। लो इखवान, मैं जरा इजाजत चाहूंगा, मेरी जरा हो रही है सर दर्द। बस हम भी क्या नाम है बस जी, बस खत्म। अच्छा, इब्राहिम भाई को हमने अपने इसका चैनल का मॉनिटर बना दिया है, चैट वगैरह वो संभाल सकते हैं, क्योंकि ये एसएम के भाई तफसीर कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हम लेकर चल रहे हैं। दुआ की दरखास्त है आपसे खास तौर से, और जब वक्त हो तो आप जरूर अपना वक्त देते रहें। जरूर जब भी मेरे पास जब भी वक्त होता है तो हम आप इतने प्यार से हमें बुलाते हैं, हम हमारे लिए तो एक ऑनर है कि आप हमें एक ऑनर देते हैं। तो जरूर हम जब भी हमारे पास वक्त हो तो जरूर जुड़ने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया एसएम भाई आपका। ठीक, मैं बस एंड करते हैं। जी 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 बिल्कुल तकरीबन 3.5 घंटे हो चुके हैं। जी मौलाना, बस फौरन एकदम स्ट्रीम को एंड कर दीजिए। इब्राहिम भाई, मेहताब भाई, तमाम लोगों का जितने भी कमेंट्स के अंदर मौजूद हैं उनके बहुत बहुत शुक्रिया। और इन लोगों का मॉनिटर होना हमारी स्ट्रीम के लिए बाइस से फ़ख्र है, ऐसे लोगों का, ताकि ये लोग हमारे साथ भी हर वक्त जुड़े रहते हैं। और अगर ये तमाम लोग भी मॉनिटर हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों का भी रहना बहुत ज़रूरी है हमारे साथ। जी अपन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो तफसीर वाला सेगमेंट है ना, वो अलग से काट कर अगला सेगमेंट अलग जी वीडियो में अपलोड मैं इसे अलग करूंगा। ये जो बात जो हुई है मैं इसे अलग करूंगा, और इसका कई वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह कट कर, एक नहीं इंशाल्लाह जरूर। मैं आपकी बात पहले मेरे ज़हन में थी, आपने याद दिला दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नादर भाई, आपका भी आने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चलते हैं फिर मौलाना। जज़ाकल्लाह। और कुरान का महीना हमेशा की तरह, जैसे मैंने पिछली स्ट्रीम में भी कहा, लास्ट 2 स्ट्रीम्स में खूब कुरान को पढ़ें, सीखें, पढ़ने की कोशिश करें। और इस स्ट्रीम में या गुज़िश्ता स्ट्रीम में तफसीर के दौरान अगर कोई गलती कोताही हुई तो वो हमारी तरफ से है, कोई अच्छी बात है तो वो जानिबिल्लाह हमारी ज़बानों पर अल्लाह ताला ने जारी की। तो आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त, आपके लिए दुआ गो रहेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।